السلام علیکم پاکستان آن نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ پاکستانی سنی تحریک گوجرانوالہ کے ضلعی رہنما محمد جاوید بٹ کا گزشتہ روز انجمن جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک محمد آصف مرتضیٰ تبسم سرفراز احمد قلندری قادری کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپسی پر ان کی رہائش گاہ پر ان کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیہ کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حج عمرے کی ادائیگی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہر صاحب ایمان کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اگر اس عظیم سعادت کی توفیق فرمائے تو ادب و احترام کے پیش نظر حج و عمرے کا اثر زائرین کی زندگیوں میں نظر آنا چاہیے۔ محمد جاوید بٹ کا مزید کہنا تھا کہ مذہبی سیاسی فرقہ واریت تو کسی جگہ بھی جائز نہیں۔ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے علماء کرام اور حکمرانوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں اسلام کی سربلندی، ملک پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور کشمیر فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق آر پی او ساہیوال طیب حفیظ چیمہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صادق علی خان بلوچ نے دنیا اسلام کی عظیم دنیا درسگاہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کا دورہ کیا۔ ڈی ایس پی سٹی مہر یوسف، اے آئی جی آصف سرور، ایس ایچ او عامر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ معزز مہمانوں نے نماز جمعہ جامعہ مسجد اولیاء جامعہ فریدیہ ساہیوال میں ادا کی۔ نماز جمعہ کی جماعت صاحبزادہ پیر اثر فرید شاہ مرکزی، امیر حزب الفرید، خطیب جامعہ مسجد اولیاء جامعہ فریدیہ ساہیوال نے فرمائی۔ آر پی او ساہیوال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر جمعے کسی مسجد میں ادا کیا کروں گا نماز اور لوگوں کے مسائل سنا کروں گا، موقع پر حل کیے جائیں گے، اور میرا مشن ہے کہ لوگوں اور پولیس کے درمیان وردی ہے اسے ختم کروں۔ آپ نے جامعہ فریدیہ کے نظام تعلیم کو بھی خوب سراہا۔ جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر جامعہ کے طلباء اور عوام کے مسائل سنے۔ بعد ازاں آپ نے قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شعبانی شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال کے مزار اقدس پر حاضری بھی دی۔ قبلہ بابا جی پیر منظور احمد شاہ کی انٹرنیشنل کتاب مدینہ الرسول صاحبزادہ پیر اثر فرید شاہ نے اپنے دست اقدس سے مہمانان گرامی قدر کو پیش کی۔ بعد ازاں جامعہ فریدیہ کی انتظامیہ کی طرف سے مہمان گرامی قدر کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا۔ صاحبزادہ پیر اثر نے خصوصی دعا سے بھی نوازا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق آج ساہیوال میں یوم تکبیر کے سلسلے میں کیک کاٹا گیا، جس کی صدارت ملک ندیم کامران ایم پی اے ساہیوال اور پیرزادہ سید عمران احمد شاہ نے کی۔ ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب ضلع ساہیوال کی زیر صدارت ٹریڈرز ونگ پاکستان مسلم لیگ نون ساہیوال کی طرف سے 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کیک کاٹا گیا۔ پیرزادہ سید عمران احمد شاہ ولی ایم این اے اور ان کے علاوہ شہر کی سماجی مذہبی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ راؤ نصیر فرید ندیم ایڈوکیٹ آئی زیڈ بھٹی میاں نوید مشتاق فرشتہ حاجی احسان الحق ادریس صدیق خان بلوچ عمران خان بلوچ ملک قاسم ندیم کامران چودھری امجد ظفر حاجی عبداللطیف ملک احسان بھولا احسن عبداللہ بٹ حاجی ایوب شیخ جاوید رشید حاجی محمد علی وقاص احمد مرزا شیخ محمد یعقوب چودھری شاہد شادہ صدر عاطف نصیر جٹ اکبر علی قریشی اسد نواز گجر ملک فاروق غازی عباس سگلا راجہ ساجد قیانی اکرم چودھری طاہر حمید امجد رشید ٹریڈرز ونگ ساہیوال ضلع میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تمام عہدیداران نے شرکت کی، جن میں چودھری کاشف رفیق ملک رمضان اور حافظ نصر اللہ محمد ارشد بھٹی مرزا زاہد بیگ شیخ محمد سلیم شیخ محمد آصف شیخ طیب نے شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لازوال کارنامے کو سراہا اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے حق میں بھی نعرے لگائے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز نوجوان سیاسی قیادت سردار محمد مالیہ مہلند خان ریشک کی فاضل پور میں سابق ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ عزیز الرحمان قریشی کی غیر آئینی غیر قانونی گرفتاری کے بعد رہائی پانے پر مبارکباد پیش کی اور خراج تحسین پیش کیا۔ پارٹی اور گروپ میں ہمیشہ آپ کی قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اس موقع پر عبداللہ عامر خان دریشک، ریحان خان شیروانی ایڈوکیٹ، ملک راجہ مختار ہوڑا سینئر صحافی نمائندہ سچ ٹائم آن نیوز ملت نیوز اور بزرگ محمد انور قریشی عبدالصمد سیال ریحان شیروانی ایڈوکیٹ عبدالغفار خان دریشک نثار احمد قریشی عدیل خان شیروانی محمد ابو بکر قریشی حاجی اختر بکر
अकरम सदीकी, मास्टर अजमल और दीगर शामिल थे। खबर है समुंदरी से। समुंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान की पेट्रोलिंग पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ की हिदायत पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया और पेट्रोल की नई कीमत से कबल ओवर चार्जिंग पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को तकरीबन 45,000 रुपये जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं किसी सूरत भी समुंदरी के शहरियों से ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। मैं 24 घंटे इन ड्यूटी रहता हूँ। शिकायत की सूरत में फौरी मेरिट पर कार्रवाई की जाएगी। खबर है हैदराबाद से। हाली रोड पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार। डीएसपी हाली रोड शकील अहमद सोलंकी की सरबराही में एसएचओ सब इंस्पेक्टर अब्दुल मालिक अबरू की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह के कारिंदे बनाम रियाज लाशौरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल सेक्शन बी हदूद से चोरी शुदा निकली, जिसका मुकदमा दर्ज था। इब्तदाई तफ्तीश में गिरफ्तार मुलजिम ने अपना ताल्लुक मुनसब मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह से जाहिर किया, जिसका मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हाली रोड पुलिस ने मज़कूरा मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ग्रेजुएट कॉलेज आरिफाला में कॉलेज इंतजामिया की जानिब से दुनिया के सबसे बड़े मुतरज्जिम कुरान मजीद की ज़ियारत का अहतमाम किया गया। कुरान मजीद अपने हाथ से लिखने वाले इम्तियाज़ हैदर नूरानी का कहना है कि इन्हें 31 सफ़ात पर मुश्तमिल कल्बी नुस्खा लिखने में 14 माह लगे। ये रंगीन जो हाथ से लिखा नुस्खा है, जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 425 दिन में इसको वाइंड अप किया है, और ये 2 जिल्दों के अंदर है। जहाँ से पारा शुरू होता है वहाँ से इसकी जो सूरत की हेडलाइन है वो सब्ज़ कलर में है। जहाँ से ये सूरत शुरू होगी उसको ब्लू कलर में लिखा गया है। 40 फीट लंबे और 8.5 फीट चौड़े इस कुरान करीम को जब ज़ियारत के लिए खोला गया तो शहरियों और तुलबा व तालबात की बड़ी तादाद इस नायाब शाहकार को देखने के लिए खींची चली आई। ये बहुत अच्छी गाइडलाइन है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी। और इस तरह का पहला सहाबा किराम के दौर में होता था कि कुरान पाक को खुद हाथ से लिखा जाता था। पीर इम्तियाज़ हैदर कादरी साहब का हाथ से लिखा हुआ नादर मुतरज्जम नुस्खा जो है, आज उसकी तकरीब नुमाई की गई और उसमें उन्होंने अपने हाथ से बहुत ही मेहनत से काम किया। जो दुनिया के सबसे बड़े मुतरज्जिम कुरान मजीद की नुमाइश ने अल्लाह की वहदानियत पर न सिर्फ ईमान मजबूत किया बल्कि शुरका के लिए सुकून कल्ब का बायस भी बनी। कामुकी से मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी एहसानुल्लाह विर्क रिहा हो गए। जेल के बाहर कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। जेल की सलाखें हमें डरा नहीं सकती, हौसले पस्त नहीं बल्कि और भी मजबूत हुए हैं। सियासत में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 61 चौधरी एहसानुल्लाह विर्क ने गुज़श्ता रोज़ सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहा होने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊँचे हथकंडों से साबित हो गया कि ये इमरान खान की सियासत की ताब नहीं ला सकते। गिरफ्तारियों, तशद्दुद से क़यादत और कारकुनों के हौसले पस्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनफी हथकंडों से मरऊब नहीं होगी बल्कि हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं। गिरफ्तारियाँ, जुल्म और जबर हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग, शेलिंग और पथराव तशद्दुद खुली दहशत गर्दी है। PTI ने एहतजाज का हक इस्तेमाल करके आइनी शिकनी नहीं की बल्कि आइनी हक इस्तेमाल किया। आइन शिकनी की मरतकब हुकूमत हुई है जिसने रास्ते बंद किए, अवाम की आमदरफ्त पर पाबंदी लगाई, बेगुनाह लोगों को घरों से उठाकर जेलों और हवालातों में डाला गया। खबर है जंग से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग हसन असद अलवी की हिदायत पर जंग पुलिस का मंशियात फरोशों समेत तमाम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुलिस थाना का कोतवाली ने मंशियात से भरी कार कब्जे में लेकर मंशियात की बहुत बड़ी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। कार्रवाई के नतीजे में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 38.4 किलोग्राम चर्स, 43.2 किलोग्राम अफ्यून बरामद कर ली गई। पुलिस थाना कोतवाली ने मुखबर की इत्तला पर रेलवे फाटक दारुल सकीना रोड पर कार नंबर LED 8130 को कब्जे में ले लिया। जामिया तलाशी लेने पर गाड़ी में छुपाए गए 32 अदद पैकेट चर्स वजन 38.4 किलोग्राम जबकि 36 अदद पैकेट अफ्यून वजन 43.2 किलोग्राम बरामद कर लिए। पुलिस थाना कोतवाली ने मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिमान सैफुल्लाह, राशिद हुसैन और खातून मुलजिमा इरम शहजादी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। SP इन्वेस्टिगेशन जंग उस्मान मुनीर सैफी ने मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बनाने पर पुलिस अफसरान को शाबाश देते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा।
उकाड़ा के नवाही गांव 12 जेडी के गवर्नमेंट हाई स्कूल में नर्सरी क्लास से 8वीं क्लास के तलबा में सालाना तकरीब रिजल्ट का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में इलाके भर की सियासी समाजी शख्सियात के अलावा नौल प्लाट प्रेस क्लब के अहदेदारान ने भी शिरकत की। बच्चों की हौसला अफजाई के साथ साथ तमाम टीचर स्टाफ से मुलाकात की, स्कूल के बिल्डिंग ग्राउंड का विजिट किया, स्कूल की सफाई, ग्रीन सयादार पौधों और स्कूल के स्टाफ टीचर की मेहनत को खूब सराहा। स्कूल के हेडमास्टर MSc फिजिक्स PhD क्वालिफाइड मोहम्मद हुसैन ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ऐसे फंक्शन का इनेकाद करने से बच्चों की हौसला अफजाई होती है, बच्चे पहले से ज़्यादा दिलचस्पी से अपनी पढ़ाई करते हैं। बच्चों के वालिदैन को भी बुलाया गया है ताकि उनके सामने तमाम बच्चों को इनामात के अलावा रिजल्ट कार्ड की कॉपी भी दी जाएगी। इलाके के लोगों को स्कूल आने और तमाम स्टाफ से मुलाकात और मयार तालीम चेक करने के बाद बच्चों का गवर्नमेंट हाई स्कूल 12 जेडी में एडमिशन करवाने की अपील की। तकरीब के एख्तिताम पर मुल्क की सलामती के दुआ के बाद आने वाले मौसस मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। एज ए हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल 12 जेडी मैं इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, इलाका के लोगों, पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूँ कि आप गवर्नमेंट हाई स्कूल को विज़िट करें, यहाँ का स्टाफ जो है उनसे आके मिले। हमारे स्कूल का स्टाफ जो है वो इंतहाई पढ़ा लिखा है, इसमें मोस्टली MPhil और PhD के साथ हैं, कुछ जो है वो PhD और कुछ PhD कर रहे हैं। तो आप हमें विजिट करें और अपना बच्चों जो है, अपने बच्चों का दाखिला जो है वो यहाँ पे यकीनी बनाएं। इंशाअल्लाह हम बच्चों की तालीम और तरबियत दोनों को अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक और माशरे की ज़रूरतों के मुताबिक उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करेंगे। तो आप आएँ, हमारे स्कूल के विजिट करें और बच्चे में उनका जो है एडमिशन करें। हमारे स्कूल में फर्स्ट नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक जो है, 8 तक स्पेशल और उसके बाद 9 तक जो है एडमिशन, 9th क्लास तक एडमिशन जो है वो ओपन है। तो आप किसी वक्त भी जो है अपने बच्चों का जो है वो एडमिशन करवा सकते हैं। पूरे इलाके बुक्स भी फ्री दी जाएगी, एडमिशन भी फ्री है, कोई एडमिशन फीस नहीं है, कंपैरेटिव। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत ज़िले की मुख्तलिफ तामीराती सेक्टर्स में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए और न्यू स्कीम माली साल 2022 से 2023 के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास जुट्ठा, महकमा प्लानिंग, हाईवेज, बिल्डिंग, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान ने अपने महकमों के ज़ेर निगरानी जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इमरान अली, एक्सीएन हाईवेज, एक्सीएन पब्लिक हेल्थ समेत दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि हुकूमत पंजाब आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने और उन्हें बुनियादी सहूलियात दहलीज पर मुहैया करने के मिशन पर गामज़न है। हमारा मकसद आवाम को तरक्याती कामों की सूरत में रिलीफ फराहम करना है। आवाम की फलाह बहबूद और उन्हें बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तमाम महकमे मरबूत हिकमत अमली के तहत अवामी खिदमत के लिए काम करें। तमाम तमीराती मनसूबों से मुंसलिक महकमों के हुकाम को वाज़ेह हिदायत जारी की कि फलाह आमा के मनसूबों में शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो खुद ज़िले के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जारी तरक्याती मनसूबों के सरप्राइज विजिट करके मयार का जायज़ा लेंगे। इजलास में मुतल्लिका महकमों की जानिब से महकमाना तोसत से जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। खबर है गुजरात से। गुजरात के इलाका थाना मंगवाल करबी का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम मोहम्मद सुफियान उर्फ कालू भट्ट 1150 ग्राम चरस 2100 रुपये वेटकेट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात से चौधरी मोहम्मद अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के थाना मंगवाल करबी का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DPO गुजरात अताउर रहमान की खुसूसी हिदायत पर DSP हाफिज इम्तियाज़ अहमद की ज़ेर निगरानी में थाना मंगवाल करबी के SHO चौधरी अख्तर गुजर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए इलाके के बदनामे मंशियात फरोश मोहम्मद सुफियान उर्फ कालू भट्ट वल्द तारिक भट्ट सकना चक्रिया को गिरफ्तार करके 1150 ग्राम चरस 2100 रुपये वेटिक बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चौधरी अख्तर गुजर SHO ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी।
मैं और मेरी टीम मंशियात फरोशों का मुकम्मल सफाया करके ही दम लेंगे। बहावलनगर रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर का एक रोज़ा दौरा। बहावलनगर में डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आरपीओ ऑफिस के सब्जासार में खुली कचहरी का इनेकाद और जिले भर के एसडीपीओस के साथ मीटिंग हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद अहमद से, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी सईद, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर का एक रोज़ा दौरा बहावलने के मौके पर डीपीओ फैसल गुलजार, एसपी इन्वेस्टिगेशन फ़रूक अहमद अनवर कमियाना और एसडीपीओ आवाज़ के हमरा आरपीओ बहावलपुर का इस्तकबाल किया गया। डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आरपीओ बहावलपुर ने यादगार शोधा पर फूलों की चद्दर चढ़ाई और शोधा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और डीपीओ ऑफिस के सब्जादार में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आरपीओ ने खुली कचहरी में आए हुए तमाम शहरियों के मसाइल को फ़र्दन फ़र्द सुना। उनकी दरख्वास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी करते हुए रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया। बाद अज़ा आरपीओ बहावलपुर ने ज़िली पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार के हमरा ज़िला भर के एसडीपीओ आवाज़ के साथ कराई मीटिंग की। मीटिंग में आरपीओ ने क्राइम कंट्रोल के हवाले से कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए तमाम मुकदमात की प्रोग्रेस को तफसीली ज़ेर गौर लाया गया और मुनासिब हदायत जारी की कि मुकदमात को फौरी अंदराज को यकीनी बनाते हुए अंदर के मियाद को योम मेरिट पर यकसू करें। मुजरमान इश्तिहारियों, मंशियात फरोश, असला नजायज़ रखने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन मज़ीद बेहतर करें और थाने में आने वाले साइलिन के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। जी रुख करते हैं बलोचिस्तान का। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में जारी बल्दियाती इलेक्शन की सिब्बी में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मिर्ज़ा इमरान बेग की जानिब से अपने अहले मोहल्ला को एतमाद में लेकर एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें अहले मोहल्ला ने मिर्ज़ा इमरान बेग की सरबराही में सरदारज़दा मीर देनार खान डोमकी के वार्ड नंबर 12 से मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर मीर देनार खान डोमकी ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप सब लोगों के दुआओं और तावन से जीत हमारा मुकद्दर होगी। और मज़ीद सरदार ज़ादा मीर देनार खान डोमकी का कहना था कि इलेक्शन जीत कर इलाके के जितने भी मसाइल हैं उनको फौरी हल करने की कोशिश करेंगे। आप सब मेरे भाई हैं, आपके तावन का मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की तमीर के लिए दुआएं भी की गई। खैरपुर नाथनशाह के नवाही गाँव प्याजों में गुज़श्ता 3 माह से बिजली के खंभे और 11,000 वोल्टेज की तारें गिरने की वजह से गाँव प्याजों की बिजली मुअत्तल। बिजली न होने की वजह से गाँव के मुकम्मल मकीन शदीद गर्मी में अजाबों वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गाँव के मकीन वापडा के जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। वापडा इंतजामिया के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी भी की गई। खैरपुर नाथनशाह के नवाई गांव पेजाओ में गुज़श्ता 3 माह से बिजली के खंभे और 11,000 वोल्टेज की तारें गिरने की वजह से गांव पेजाओ की बिजली मुअत्तल। बिजली न होने की वजह से गांव के मकीन शदीद गर्मी में अजाबों वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गांव के मकीन वापडा के जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए और वापडा इंतजामिया के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। उस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 3 माह से हमारे गाँव में 11,000 वोल्टेज के खंभे गिरे पड़े हैं, जबकि 11,000 वोल्टेज की तारें भी जमीन पर गिरी पड़ी हैं। बिजली के खंभे और तारें गिरने की वजह से हमारे गांव में गुज़श्ता कई माह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। तूफान आयो जंहिंजे करे असांजे ॻोठ जा जेके पोल हुया उहे कुझु टेढ़ा थिया, पर कुझु हिकिड़ो ॿ किरी पियो ऐं तारूं जेके आहिनि बिल्कुलु धरती ते ज़मीन ते पयूं आहिनि। इन खे मुसलसिल 3 महीना गुज़रिया आहिनि। असांजो आवाज़ जेको आहे इहो 3 महीननि लगातार असां एहतजाज कंदा पिया अचूं, पर गवर्नमेंट जे ऐं हिस्को इदारनि जे कंहिं बि माण्हूअ खे कन ते जूअं बि नथी चुरे। पेजाओ जेको बिजली आहे पूरो बहाल कयो वञे, हिते 1000 बीमारियूं जेके बीमारियूं जनम वठण जेको जोड़ींदो आहे, जो हे पोल जेके किरिया आहिनि 3 महीननि खां मुसलसिल, हे अॼु एहतजाज हिननि पेजाए में कयो आहे। थी सघे त सुभाणे असां साइंटिस्ट हाईवे बंदि करे ऐं उते एहतजाज कयूं। छाजे लाइ एहतजाज कयो, छा मसइलो अथव? असां बिजली जो एहतजाज कयो आहे। तक़रीबन 3 महीना खनि थी विया आहिनि। उहो पेजाए में बिजली बंदि आहे, पोल बि किरी पिया आहिनि, पोल किरी पिया आहिनि, मरम्मत हुनजी नथी थिए। 11,000 वायरूं ज़मीन सां लॻी पियूं आहिनि। वापदार अचनि ई कोन था, चकर न ॾिसनि था, न छा असां हुकूमत जो मुतालबो आहे त बिजली ॾेई वञे। छा मसइलो आहे, छाजे लाइ एहतजाज कयो आहे? मसइलो इहो आहे त तूफ़ान जे सबबु पोल किरिया पेजाए में मुसलसिल 3 महीना थी विया आहिनि। 3 महीननि खां पोइ हुकुमरान अहिड़ो कोन आयो आहे या को वॾी सितर माण्हू कोन आयो आहे, पुछो था न। बिजली के मुसलसिल 3 महीना थी विया आहिनि, बिजली न ॾिनी वई आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे त बिजली बहाल कई वञे। बिजली न होने पर शदीद गर्मी में गांव के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
जबकि खंभे और तारें ज़मीन पर होने की सूरत में जानी नुकसान का भी खदशा है। इसकी कई मरतबा मुतलका वापडा इंतजामिया को शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। बिजली की तारों की वजह से गाँव में कुछ भी नुकसान हुआ तो मुतलका वापडा इंतजामिया जिम्मेवार होगी। हिननि जो मुतालबो आहे त केनशाह वापडा खां SDO खां ऐं लाइनमैन गोज़ो खां त फिलपुर पेजाए में जेके किरल बिजली जा थंबा ऐं तारूं आहिनि उहे दुरुस्त करे बिजली बहाल यकीनी बनाइनि।